इस पॉडकास्ट के बाद IIT एस्पिरेंट जरूर आधे हो जाएंगे। कोटा इन शैम्बल्स आफ्टर दिस पॉडकास्ट। मैं समझ रहा हूँ वो बात को। अच्छा, जोक मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। So like watching an IIT student arguing with an IIT lecturer. This happened 17 years ago, Vipul. But we forget now at the age of 40, all of us are very secure. I'm 34. In what we do. 34? 34. I'm not this old. अरे the difference is negligible. सॉरी, एक स्टोरी सुनाता हूँ, शायद काम आ जाए। 4 पॉडकास्ट है आज पूरे। आज तो मैं खुल चुका हूँ। अरे और स्ट्राइक के टाइम में फिर मैंने एक प्ले लिखा था जो हमने परफॉर्म किया था। तो wasn't expecting No, I was not expecting. Oh my God. Street theater doyen. Okay, Vipul, we have killed it. We have killed it, भाई. I think by the end of this podcast, both Vipul and Biswa are going to email their degrees back to IIT. आप रखो, हमने नहीं कमाई ये डिग्री, किसी 2011 के और 2 बच्चों को दे। 4 यार मिलेंगे तो क्या करेंगे? तो बैठेंगे तो बातें करेंगे, कुछ किस्से सुनाएंगे एक दूसरे को और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो बस यही हो रहा है इस शो के अंदर भी। और हर हफ्ते एक नया एपिसोड आएगा, कुछ नए यार दोस्त आएंगे हमारे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगले हफ्ते अपने आप पता चल जाए कि कब एपिसोड आ रहा है। और लाइक और कमेंट तो आप कर ही दोगे। और बात सुनो, अपने 4 यार को शेयर करो। मैं शुरू कर लूं अब, उसके बाद ये सारा पूछ लेंगे ना। लग तो मुझे यही रहा है। The opening act of the Vipul special. So, welcome to another episode of 4 Yaar, where we have 3 audience and 1 performer. So this one is about engineering and preparation for engineering. So we have engineer, and 1/4 engineer. Yeah. फर्स्ट ईयर में ड्रॉप किया था? नहीं, सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। But I count as 1/4 क्योंकि सेकंड ईयर में गया ही नहीं। What's your story? I think that will be interesting. So, very simple story. Basically, did very well in school. So I was like, wow, I'm science brain. Then did very well in junior college. I was like, wow, I'm not medicine brain. I must be engineer brain. Then went to engineering college and realized, oh shit, I was just junior college science brain. कुछ नहीं चमक रहा है. And just didn't enjoy my engineering college experience and figured that if I continue with this, I will become a depressing statistic. Okay. So, but also didn't have courage to drop out of college, so I just stopped going. And I'm like, cool, by the end of the year, my hand will be forced and they'll have to throw me out. And then I'll deal with whatever happens. And so, yeah, that happened. I got kicked out. But basically, first time my teachers saw me was when I went and tried to sit for the exam. Okay. And I still remember my teachers, second year teachers' first words to me, which were, who are you? And I said, I am he. And they were like, oh, you are he. Then 5 teachers came, did conference, took me out of the exam hall and said, you are not eligible to sit for this. And then I had to go tell my parents. And then I sat at home. And then where Izzat said, did BMM, Bachelor's in Mass Media. Shout out, Jai Hind College. And yeah, so I'm 1/4 engineer. I did the first general shit here. Yeah. But मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था कि? So obviously they were very angry at first because I think like a lot of our families, they had all hopes and dreams about, like my grandmother used to for fun tell people I'm going to IIT. I didn't have the heart to tell her that it's not happening. My grandmother from his side was like, हाँ ये तो IIT. I'm like, हाँ बाप का IIT. जाएंगे बॉम्बे बोल के जाऊँगा IIT में. And yeah, I think it was one of those things where I don't even think it was pressure so much as, I don't know about you guys, but I feel like growing up in that era, you were never taught that there's another option at all. So more than pressure, it's like this is the direction the river flows and you have to go down this river only. Okay. And then I realized that no, there are other tributaries and other water bodies that one can swim in later on. But yeah, that's how, and obviously it was very bad. So when I did drop out, my main issue that my parents had was they said that you could have told us. Okay. You just did a bad thing by letting it come to this point. मैंने ये था कि आप घर से तो रोज निकल रहे हो लेकिन कॉलेज पहुंच नहीं रहे हो। यार मैं जाके लिटरली कॉलेज के गेट तक जाता था, फिर डर लगता था, मेरे को पैनिक अटैक होता था और फिर मैं जाके 7 घंटे मरीन ड्राइव पे बैठता था। For 1 year. For 1 year almost, yeah. अकेले और भी लोग के साथ में? अकेले मतलब with the rest of Bombay.
unemployed and dropout people who are also sitting on Marine Drive. But अकेले myself, yeah, literally bag लेके. तो क्या थॉट्स क्या रहते थे मरीन ड्राइव को देख के? Mostly just stress के यार एक साल में तो मतलब जो लगने वाली है. But I would just and then I would go home. How was college? Amazing. Learned so much engineering today. And yeah, Builders of tomorrow. so that was me. Yeah, that's my story. That's it. तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हुआ था कैसे, मतलब मार्क्स? नहीं, normal marks, HSC marks. Like I was अच्छा. at KJ Somaiya College of Engineering. So through my, I got good marks also in HSC. Okay. से ये So I पता got- चलता है कि HSC बोर्ड बहुत वीक है. हाँ. ये मेरे को भी रियलाइज हुआ. तो मैं 10th तक ICSE बोर्ड में था और मैं टॉपर था. हाँ. मतलब मैंने हर क्लास का रिकॉर्ड तोड़ा. सेकंड क्लास में हाईएस्ट ऑल टाइम, थर्ड फोर्थ 10th टॉपर. फिर पापा ने बोला भाई टॉपर लोग तो आईआईटी करने जाते हैं कोटा में. मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैं तो टॉपर हूँ, होशियार बच्चे वहाँ जाते हैं तो फिर मैं वहीं जाऊँगा. तो मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया कि जो मेरा ICSE बोर्ड था और वहाँ का जो CBSE बोर्ड था, तो मेरे जो 95% थे वो वहाँ के मेरे 80% तक ही बन रहे थे. हाँ. और मेरे को कुछ चमक ही नहीं रहा था मैथ्स में और ये, और मैं बैक बेंचर बन गया. तो मेरी जो 10 साल का जीवन था टॉपर और सडनली मैं कोटा बंसर क्लासेस पहुंचा और मैं लास्ट बैच में, और मेरे को जनरली कुछ चमक ही नहीं रहा, ऊपर से आ रहा है, मेहनत कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा. तब मुझे रियलाइज हुई कि ICSE बोर्ड बहुत ही बड़ा स्कैम है. सिर्फ इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी हमने सिर्फ रट के पास किया है. So yeah, what we've learned from my story is that this is about Vipul. आपकी स्टोरी भी 1/4 थी आपकी. आपकी क्या स्टोरी है? मेरी स्टोरी ये है कि मैं मतलब एक तो घर से प्री प्रोग्रामिंग थी, फादर इंजीनियर थे, तो ये था कि इंजीनियर ही बनना है. घर में ये था कि मैकेनिकल ही करनी है. तो बठिंडा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल मिली, तो वहाँ पे भेज दिया गया कि अब वहाँ जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो. सो मतलब कोई ऐसा नहीं था कि इंटरेस्ट है या ये है वो है, नेवर, नथिंग लाइक दैट. वो क्वेश्चन ही नहीं आया कि व्हाट डू यू वांट टू डू. वो ये था कि करनी है वाला हिसाब था. सो दैट्स हाउ आई डिड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग. आपके पापा कौन इंजीनियर थे? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करी थी उन्होंने. और आपने क्या मैकेनिकल? मैकेनिकल. तो आपका पापा का इच्छा था कि आप मैकेनिकल करो? हाँ एग्जैक्टली. मतलब मुझे मूर्थल विच वॉज लाइक 45 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम, वहाँ मुझे केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही थी. नहीं मैकेनिकल ही करनी है. तो क्यों? वो कभी Sorry, वो पापा the real questions. बट वो पापा से पूछने की कभी हिम्मत नहीं होती. हाँ, वो बैक आंसर करता है बाप को. हाँ, डैडी से मैंने कभी पूछा ही नहीं. वो बेसिकली आई थिंक उनके माइंड में ये था कि दैट्स द सेफेस्ट इंजीनियरिंग दैट यू कैन डू. इट कैन गेट यू द मोस्ट स्टेबल जॉब. आई थिंक दैट्स व्हाट द आंसर वाज इन हिज माइंड. तो हमने कभी पूछा ही नहीं कि ये करनी है या वो करनी है. आई डिडंट आस्क एनी ऑफ दोज क्वेश्चंस. करनी है तो करनी है, फिर मैकेनिकल ही करनी है बस. और कोई इधर उधर भी नहीं देखना है कि कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, नथिंग. मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल. तो बठिंडा में मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जेंडर रेशो क्या था? हैं 60 बॉयज एंड 1 गर्ल. प्रोफेसर? हैं नहीं, लड़की थी, हमारी क्लास में स्टूडेंट थी. तो बट 60 बॉयज एंड 1 गर्ल, दैट वाज द रेशियो. मतलब वो 1-2 बैच छोड़ के एक लड़की होती थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग. नोबडी लाइक गर्ल्स वुड नेवर टेक मैकेनिकल. इसलिए पापा मैकेनिकल दिलवा रहे थे ताकि आप बिगड़ो नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो. अरे यार वर्कशॉप बड़ी गंदी होती थी ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. वर्कशॉप Yeah. होती थी गर्मियों में. ओ माय गॉड, Yeah, I remember that. फुल गर्मी, जून के महीने में फर्नेस पे काम कर रहे हो. I think the main thing I remember from engineering college is all the sweat. You reached sweaty, you got sweatier, and you went home sweaty. Sweat. Like that was it. तेरा क्या स्टोरी था? मेरा कुछ खास नहीं है. मेरे को एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट था. तो बचपन में साइंटिस्ट बनना था. मतलब मैंने कोई साइंस का किताब पढ़ लिया था, तो मेरे को लगता था कि ये लोग कितने कूल हैं. सॉरी गाइस, लगता था जो लगता था. Cool. तो yeah. People will listen to these people always. Yeah, I was like, oh my god, Copernicus, Galileo, the crazy. तो बस मेरे को एक्चुअली में बहुत मन था कि एस्ट्रोनॉट बनूं, कुछ इस टाइप का. एंड ऐसा फालतू वाला मेरे को एक्चुअली में मन था. तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि कर लो IIT कर सकते हो तो. और उस टाइम पे बहुत मतलब पूरे उड़ीसा से भी उतने लोगों का निकलता नहीं था. सो आई हैड टू गो टू विशाखापट्टनम. एंड मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था. तो कुछ मतलब द कोचिंग कंडीशंस वर नॉट फार फ्रॉम आइडियल एक्चुअली. बट क्योंकि वो मोटिवेशन चस्का लगा हुआ था कि एक चैलेंज है जिसको क्लियर करना है ऐसे करके. तो मैंने वो कर दिया. उसके बाद एक्चुअली मैंने
सोचा कि मेरे को इंजीनियरिंग तो नहीं करना लाइक मुझे बस ये एग्जाम क्रैक करना था कि मुझे बहुत आई डोंट वांट टू डू एनी ऑफ दिस शिट लाइक दैट इज अवेलेबल हियर क्योंकि पता नहीं किसी को समझ आएगा, किसी को रिलेट होगा नहीं होगा, पर ये मेरा एक बहुत ही वियर्ड सा प्रॉब्लम है कि अगर कोई इक्वेशन में कोई चीज़ को लोग नेग्लिजिबल बोल देता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि यू हैव टू, दिस इज इनसिग्निफिकेंट। अरे भाई अगर वो है तो तू सॉल्व करना भाई, तू ऐसे तो छोड़ के तो कुछ भी हो सकता है ना लाइफ में। एंड दैट 11th में कुछ भी ऐसा नेग्लिजिबल नहीं रहता था, ठीक है, दोनों इक्वेशन पूरा सॉल्व होकर ऐसा निकलता था। मैं गया पहला क्लास IIT में, प्रोफेसर बोला कि इसको नेग्लेक्ट करना है, मेरे को बहुत गुस्सा आया कि मैं नेग्लेक्ट नहीं करूंगा भाई, तू कौन होता है डिसाइड करने वाला, सडनली ये इक्वेशन में नेग्लिजिबल है। I love all variables equally. या नहीं, इस मतलब कि तुमने गिव अप कर दिया ना कि तुम अगर ट्राई करोगे शायद सॉल्व हो जाएगा, अब नेग्लेक्ट ही कर देना है तुमको। तो मेरे को वो मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं आता जिसमें अप्रोक्सीमेशन वगैरह होता है। जो नाम लेना जो फर्स्ट ईयर में एप्सिलॉन डेल्टा ना, एप्सिलॉन डेल्टा कुछ तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में आया था, ओके, कुछ फालतू आया था वो भाई। नहीं आप मेरे को बताओ। कोई बात नहीं रोहन, Epsilon Delta नहीं बिल्डिंग का नाम सुना है। क्लियरली यू कैन सी IIT नॉन अच्छी बिल्डिंग IIT। है। अरे भाई मतलब जो भी है वो मैं अगर आपको बोलूं कि 2 + 2 is 3 and you're like it's not, but I'm like 1 is negligible ना भाई। अरे नहीं, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा विश्वा के 1 कैसे नेग्लिजिबल होगा अगर 3 में 1 ऑलमोस्ट 33% हो गया। जब हम लिमिट x + डेल्टा x बोलते हैं तो डेल्टा x इतना नेग्लिजिबल होता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू 0 होता है, तो नेग्लिजिबल। तो 33% से कम मतलब कितना परसेंट आप बताओ? 0.0001 x + डेल्टा x में डेल्टा x बहुत ही नेग्लिजिबल। आपने डिसाइड कर लिया कि 1% जो आप 1% नहीं भाई 0.000001। मैं समझ रहा हूँ वो बात को। अच्छा, joke मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। मैं So like watching an IIT student arguing with an IIT level. this happened 17 years ago, बिल्कुल। पूरा चैप्टर ही वही l'Hopital रूल, लिमिट x टेंड्स टू, उसपे तो यार डेल्टा x ऐसे निकाल देगा यार। करेक्ट मैं वो अभी मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, पर मेरे को ऐसा उस टाइम पे गुस्सा आता था कि ये मैथ से मेरे को नहीं करना है I can see करके। why there aren't that many podcasts with just 2 IIT. There are almost negligible podcast about it. तो फिर मैं एक ही क्लास में बैठा। एक तो प्रोफेसर मतलब वो इतना बोरिंग प्रोफेसर था, लोग उससे निकल के जा रहे हैं और बोल रहा है कि यू आर टेररिस्ट्स, यू आर टेरराइजिंग मी, ठीक है। प्रॉप बोल रहा है भाई, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, वो बोले यू आर टेररिस्ट, ठीक है। किसको पढ़ने का मन करेगा भाई, ये तू इतना बोर कर रहा है कि बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। माय थिंग इज जो इतना सिलेक्शन क्राइटेरिया लगा के तुम जो बच्चों को ला रहे हो, अगर उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जो इतना पढ़ के यहाँ पे आ रहा है, अगर उनको पढ़ने का मन कर रहा है, तुम खराब हो, ठीक है। कि तुम चुन के 2 साल घिसा के इंडिया भर से लोग लेके आओ, अगर उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तुम रिजाइन करो, ठीक है। या तो सारे लोग तेरे जैसे बस एग्जाम क्रैक करना था उन्हें। हम पहुंच गए, बात खत्म। बट एग्जाम क्रैक करने के बाद में ये सही बोल रहा है, फर्स्ट मंथ तो वही रहता कि अब तो फोड़ देंगे ऐसा, तो आप आते तो उसी इंटेंशन से हो के जो रैंक में लेके आए उसी रैंक को कैरी फॉरवर्ड आगे वाली मेहनत करनी है। लेकिन 1 महीने में वो प्रॉफ बिल्कुल आपको शांत कर देते हैं। And it's so boring. कंप्यूटर लैब में जाके देखता है कितना है सर्वर पे। लैब में नहीं होता था यार। Then I just like उसके बाद ना मतलब मैं वो बोल रहा हूँ कि उससे पहले बहुत इंटेंशन बहुत प्योर था कि मेरे को साइंस, you know, I wanted to do it. Yeah. I actually wanted to do it. But the way it gets done is just so boring and so I will pathetic. agree with you there. I found that was my main problem in the first year as well. I just felt like a lot of this stuff, if it had been taught to me better, I probably would have stuck it through. But a lot of, and I say this with no disrespect or just a little disrespect, not very inspiring teachers, genuinely. फर्स्ट ईयर में तो ईगो से ही पढ़ाते थे प्रॉफ कि तुम्हें ये भी नहीं पता। आई थिंक वो थोड़ा वो भी होता होगा ना, तोड़ने वाला भी होता होगा कि तुम बहुत टॉपर बन के आ रहे हो ना अपने यहाँ से, अब तुमको बताते हैं तुम्हारी औकात क्या है। But ये क्यों होना है यार? We had good professors also. Good professors, very very good professors also we had. जो लोग पूरा मतलब I still remember what they taught in first year 17 years ago what they taught I still remember. Okay कि क्योंकि वो अच्छे होते थे, वो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जगाना चाहते जगा सकते थे, but most of them are like this. Most of them just want to break you. एक तो तुमको खड़गपुर में डाल दिया है, मैं मतलब प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। सिटी लाइफ 0 है, करने को कुछ है नहीं। तुम ऑलरेडी हाफ टूटे हो। धोनी भी खड़गपुर छोड़ के जा चुका है। या
Maybe that. The point is कि and it's not just me. I know a lot of people who are and Vipul also. I'm assuming कि जिनको बहुत प्योर पैशन होता है साइंस का, बहुत लोग करना चाहते हैं, बट जो जिस तरह से इंजीनियरिंग होता है और जो एग्जाम है उसका एक्चुअल कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, जो कोर्स है उसका एक्चुअल काम से कोई लेना देना नहीं है, एंड दैट डिस्कनेक्ट इज मैसिव एंड इट्स अ मैसिव लॉस ऑफ टैलेंट. इट्स लाइक इट्स अ बिग प्रॉब्लम. I strongly feel when I look at IITs and all, I think वहाँ पे more than the subjects, you learn from each other. Yeah, it's basically the ultimate networking event. हाँ. It's a 4-year-long networking event among smart networking people. तो बाद It's में not a है. bad thing. नहीं, नेटवर्किंग तो बाद में जब आप अलुमनाई बनोगे और पूरा अलुमनाई Correct, नेटवर्क correct. वो यूज करोगे. मेन तो मुझे जो लगता है कि यार ये तो आप मानोगे कि IIT JEE का एंट्रेंस एग्जाम इंजीनियरिंग फील्ड में Toughest in the world, toughest in the probably. world भी बोल सकता हूँ मैं. तो वो जो 4000 लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं वो मतलब अपने अपने एरिया के ब्रेन मतलब क्रीम ऑफ द क्रीम जो बोलते हैं वो है. तो उनके साथ जब आप वहाँ और IT में क्या आपको रैंडम रूम अलोकेट होता है, तो आपके बाजू में कोई मल्लू है, एक साउथ इंडियन है, एक बिहारी है, ये तो आप इतना फर्स्ट टाइम लाइफ में वो डाइवर्स कल्चर स्टडी करते हो कि यार कोई कहीं का भी है और सबका एटीट्यूड ये है कि मैं IIT हूँ, मैं कुछ भी कर दूंगा. तो ये जो एक कॉन्फिडेंस पता नहीं कैसे बिल्ड हो जाता है कि यार हम मचा देंगे. उससे यार मेरे को लगता है कि वो जो भली वो फेक कॉन्फिडेंस भी हो, लेकिन लाइफ में आप 90% ऑफ टाइम्स फेक कॉन्फिडेंस से ही नेविगेट करते हो यार. I think ये भी है ना कि एक तो जो भी IIT आ रहा है वो अपनी क्लास का टॉपर है. हाँ. And suddenly you have 40 of 40 toppers. So if only one of them can be the topper of toppers. हाँ, So वो रियलिटी चेक तो आपका हो ही जाता था. मेरा तो वो कोटा में ही हो गया था. one really important thing that you said is I think IIT or wherever else, I think हर बच्चे को एक बार ना घर से दूर कॉलेज जाना चाहिए. For that experience completely of agree. you will see people who are outside of your bubble and the people that you know. Like you said, if you've grown up in a like where I've grown up, I would not expect to like until I went to college away from home. They are just meeting people from different parts of the country with different life experiences and just for the first time that idea coming in your brain के मुझे सब कुछ नहीं पता. Like studies तो छोड़ो, but just दुनिया के बारे में actually मुझे कुछ नहीं पता. कुछ नहीं and you पता. are spending 24 hours with them. With completely different worldviews and diverse और perspectives, आपको no, it अपने changes you. चड्डी बनियान खुद धोने वो भी एक थोड़ी ह्यूमिलिटी आती है. आप होंगे बहुत अमीर बाबा के घर से आए होंगे. और मुझे बेस्ट पार्ट जो कॉलेज का लगता है, जो मुझे लगता है सबको घर से अलग ही रहना चाहिए कॉलेज टाइम में, क्योंकि द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू एक्सपीरियंस एब्सोल्यूट फ्रीडम. आई एम नॉट आंसरेबल. रात को मैं पापा को आंसरेबल नहीं हूँ. मैं लैब से आऊंगा, रूम पे बच्चों के साथ चिल कर रहा हूँ, हॉस्टल में सो रहा हूँ, और मैं रात को 10 बजे पापा को फोन आ रहा है, मैं मस्ती कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर लैब में असाइनमेंट है, अच्छा बेटा असाइनमेंट, ठीक है ध्यान रखो ये हो गया. तो आप फर्स्ट टाइम एब्सोल्यूट फ्रीडम, तो आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है कि मुझे किसी को रिपोर्ट नहीं करना है रोज. घर पे तो यार आप हो तो stealth Just mode to में add रहते to हो ना. this is more applicable for boys क्योंकि लड़कियों का हॉस्टल 7:30 बजे रात को बंद हो जाता था. इसमें IIT बॉम्बे बहुत ही प्रोग्रेसिव है. IIT बॉम्बे में बंदियों के भी कोई कर्फ्यू टाइम ही नहीं है. अच्छा. हाँ, उल्टा बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में आप आ जा सकते हो, लेकिन ये है कि बॉयज हॉस्टल में 8 बजे के बाद में लड़कियां अलाउड नहीं है, और गर्ल्स हॉस्टल में भी शायद उस समय 8 या 9 था, वो अलाउड नहीं है. लेकिन आप कैंपस में रात के 2 बजे तक घूमो, कोई फर्क नहीं है. आप लड़का और लड़की दोनों रात को 2 बजे तक बाहर घूमने जाओ, कोई नहीं है. आप 4 दिन तक कैंपस में मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को फोन नहीं, कुछ नहीं है. तो IIT बॉम्बे में वो बहुत ही एब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब दे वर सो प्रोग्रेसिव कि यार ये एडल्ट्स है यार. And I Let them wish decide. more colleges did this. क्योंकि हमने एक ऑनर विद भी एपिसोड भी किया था इसके बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एंड देयर वाज अ स्टडी दैट बेसिकली सेड कि सबसे ज्यादा रिक्रूटर्स का प्रॉब्लम इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ये है कि सॉफ्ट स्किल्स नहीं है. टेक्निकल स्किल्स मस्त है, बट बिकॉज इट्स लाइक गर्ल्स एंड बॉयज हैव बीन केप्ट सेपरेट, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. द एक्चुअल अदर थिंग्स दैट यू नीड टू मेक यू गुड एट योर जॉब, व्हिच इज जस्ट द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अनदर एडल्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, यू डोंट हैव. Zero Which skill. can really lock you out of a lot of good work actually. हम लड़कियों से भी कम्युनिकेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही कर सकते हैं. C++ का कोड लिख दूं, फोर्ट्रान लिख दूं, यही था. मेरे को एक चीज ऐड करना है इस पे. आई थिंक sorry, maybe this will come out as very confusing, but it's like forming in my head. I think brilliance and the role of brilliance in society, or like the utility of brilliance, is overstated in the sense that brilliant people are actually not as useful as we think they are. Okay, so अगर आप खाली brilliance के base पे selection कर रहे हो लोगों का and उनको एक facility दे रहे हो, it does not translate into any actual outcome. मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बंदा बहुत ब्रिलियंट हो सकता है, लेकिन वो शायद सोसाइटी को उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा जितना एक बंदा शायद उतना ब्रिलियंट नहीं है, पर
उसमें कुछ अलग एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी compassionate, he is very socially glued in or empathetic or whatever. Those things might play a better role. I mean, मेरा कहने का again मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा थॉट है कि सबसे ब्रिलियंट जितने बच्चे हैं, IIT एंट्रेंस इज जस्ट अ प्योर IQ टेस्ट. ओके, इट इज जस्ट अ प्योर IQ टेस्ट एंड इट इज अ वेरी स्क्यूड IQ टेस्ट. अगर 18-20 लाख लोग लिख रहे हैं उसमें से 5-10 हज़ार का हो रहा है, दिस हैज गॉन बियॉन्ड any reasonable this thing. Okay, कि तुम बस if you just want that level of brilliance, it's actually useless at that point. The whole point is not that this selection is useful. The whole pride is that this selection is tough. Okay, कि ये बहुत tough exam है. It's not tough because it is very deep or it is very insightful. It is tough because a lot of people are fighting for it. Okay, The numbers game. yeah, okay. नहीं IIT मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो कि अगर आप अभी मान लो नीट में अभी 50 जन टॉप मार्क पे आ गए. ओके, अगर आप क्वेश्चन पेपर इजी रखोगे तो सबके लिए सबके ये आ जाएंगे. सो यू हैव टू क्रिएट द क्वेश्चंस टू अ लेवल ऑफ टफनेस वेयर 5000 डिफरेंट रैंक्स अराइज. समझ रहे हो कि अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा भी इजी हो गया, हर रैंक पे 5 बंदा आ जाएगा. समझ रहे हो? तो द क्वेश्चन पेपर इज टफ टू अवॉइड सिलेक्टिंग. It is a selection averse question paper. It's trying to reject. It's trying to be so tough that nobody can actually attempt all the 100 questions. That's not how you should test people for, to be useful in engineering or society or whatever. What you're really training for is absolute कि कौन कितना जान लगा के खाली ये एक particular game खेल सकता है. तो यार अगर मुझे उस गेम के बेस्ट प्लेयर्स निकालने हैं, मैं एक बेस्ट इंस्टीट्यूट हूँ, मुझे बेस्ट चाहिए, तो मैं वही तो करूंगा. Yes, so then it becomes a tournament. Okay, चलेगा. तो होता क्या है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना बहुत टफ चीज है, बट एक देश में be a success if 100% of people going in would be going into engineering. Okay, that's when it would 90%, 85%. अगर 15% ही लोग जा रहे हैं into the actual core field, then IIT is not a useful system. क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो 90% लोगों का डिसीजन बाप लेता है कि आप मैकेनिकल लो तो IIT कर तो इंटेलिजेंट है. आप जब IIT में 4 साल जाते हो, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल जाते हो, आपको 3rd साल में क्लैरिटी मिलती है. मेरे को 3rd में पता चल गया था कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी यार, मेरे बस की नहीं है. ये तो मैंने एग्जाम ईगो पे लेके क्रैक कर दिया. तो काफियों को तो क्लैरिटी 3rd ईयर में मिलती है कि मेरे को नहीं करना है. हाँ, पर उसमें एक और चीज़ भी है. आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट वी नॉट टॉक्ड अबाउट. इट इज़ मनी. जो हार्डकोर टेक्निकल जॉब्स हैं उनमें जो पैसा मिलता है is way lesser than what you can make as an investment banker, as somebody who becomes an investor in startups or whatever, all those things pay way better than being a pure, 100%. I feel like if you've been through the sort of process that he described, all you're thinking about is now how do I get my most bang for my buck? Like that's बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. That's it. 80% यही होता है कि भाई मेरे को अच्छी जॉब लेनी है, मेरे को अब इजी लाइफ चाहिए. US जाऊंगा, इसरो में नहीं जा रहा ना कोई IIT. हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि I have seen people who did not make it into IIT, but they have a more. If this exam was not a factor, this person would have benefited from going there more. Okay. अगर आप खाली एग्जाम करके ये जो 5 लोग सिलेक्ट हुए, इनको छोड़ दो, इनको IIT में ना पढ़ाओ, I don't think their life gets affected too much because they're anyways your selection criteria is so skewed that you're selecting a समझ रहे हो कि इतना ये सिलेक्ट करो आप. बट बिस्वा, आदमी इंजीनियर कॉलेज में जाके बनता है यार. पहले तो आप एक एग्जाम दे रहे हो और अगर 5000 लोग सेलेक्ट हुए हैं तो मैं तो बोलता हूँ जो 5000 से जिनकी 10000 की रैंक आई है वो दे आर एज गुड एज IITians. उस दिन उनकी एक्यूरेसी मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक हो गई. तो वो जब बिट्स पिलानी में भी जाएगा तो एक तो उसके अंदर वो वाला गुस्सा है कि मेरा नहीं हो पाया, अब मैं बताता हूँ. तो वो काफी लोग IIT से बेटर परफॉर्म करते हैं कॉलेज के बाद, क्योंकि उनके अंदर वो एक एंगस्ट है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. IIT वाले थोड़े हम चिल बैक हो जाते हैं कि अब तो लाइफ सेट है, तो वो लोग आगे भी निकलते हैं उस तरह से. और ज़्यादा डिफरेंस आप IIT को भी छोड़ो, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, ये 19-20 का ही फर्क है. तो जिसमें वो जुनून है, और मैं तो ये मानता हूँ कि यार जो बाकी के जो 50% की रैंक्स आई है जिनका नहीं हुआ, उनकी सिली मिस्टेक हुई है उस दिन. दे आर एज गुड एज अदर IIT, और मेरा उस दिन लक चला है तो मैं आगे भी आ गया. बट वो लॉन्ग रन जो है ना, जैसे वो इवन आउट कर देगा. लॉन्ग रन में वो अपना इवन आउट होगा यार, क्योंकि IIT के अंदर भी तो लोग हैं जिनकी जॉब नहीं लगी. But there is another way. Let me try to rephrase what he is saying. There are other people. I might be wrong on this. There are other people who probably deserve that infrastructure and that teaching of engineering more than the people who got selected.
there are या deserve probably तो क्या होता है? डिजर्व तो नहीं बोला मैं exam है। who will विपुल probably add more value विपुल because of component तो है यार। विपुल के Luck उसमें component तो है ही उस दिन। विपुल के एग्जांपल से मैं बोलता हूँ, एक सिलिमिस्ट के वजह से आप एक बंदे की जिंदगी को ऐसा राह नहीं दे सकते. हाँ. ओके, यू कैन नॉट बिल्ड IIT और द ब्रांड एटीट्यूड सो हार्ड दैट एक सिली मिस्टेक कर दिया अब तेरी जिंदगी ऐसे निकल जा रही है. नहीं निकल रही है, नहीं निकल रही है. बट उस वो चार से पीछे ही जाता है बस. करेक्ट, बट उसको उस उम्र में वही लगता है और ये ब्रांडिंग को मुझे तोड़ना है. But that failure is true for any competitive exam. No, but उस age में अगर बंदी भी ना करती है तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जिंदगी में कोई बंदी मुझे हाई नहीं करेगी. But no, here's the thing, right? I think one thing that you're talking about, to take 4 steps back from IIT or whatever, first let's look at the age at which people are doing this exam, right? You're 18, 19. First of all, it's crazy to me that the most, your 10th, 12th, and then whatever your entrance exams are for competitive things, happen at the age where your brain and your hormones are at the most volatile. Most they will fragile be, like most and, fragile. Your brain is not fully developed. Your hormones, adolescence, etc., everything is going all over the place. And then you bring everything down to this one focal point of this one day that can really, where what happens is we celebrate the people who get in. But we forget now at the age of 40, all of us are very secure I'm 34. in what we do. 34? 34. I'm not this oldies. Arey, the difference is negligible. Ignore it. But we sort of forget that sort of, having kids do this and then the amount of pressure we put on them, we forget at that age of 16, 17 how scary it was to come out of one exam or go into one exam feeling like, you know what, this one silly mistake could either Change make my or life. break my entire life. My life. whole life has been और brought मैं- down to this one point. That's a scary thing to do, especially in our culture where we really celebrate that guy who comes first, right? Like quote BMW milta hai, if you're topper, this, that, whatever. But there is You only nothing. celebrate second जब Olympics वाला shooter हो. Nothing for the people that don't make it. We treat them like, yeah, you failed. You failed and now you should, and that's horrible, right? Like today in the way that I think the fact that today नहीं हुआ Vinesh Fogart का and we're still like, यार, ठीक है यार, अपनी तो है तू. I wish we could extend that courtesy to every kid that doesn't make it in their this thing, because I feel like यार वो- there is genuine psychological damage that comes वो तो from डेफिनेटली this होता है, feeling. डैमेज भी होता है. प्लस आप फर्स्ट टाइम आप घर से अलग हो, मैं कोटा में पढ़ रहा हूँ तो मैं अलग भी रह रहा हूँ, तो एक तो वो इमोशनल ट्रॉमा है कि माँ बाप से अलग रह रहा हूँ, ये सब भी हो रहा है, वो हो रहा है. मेरा कहने का पॉइंट है कि आई बीन एट बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 4203 रैंक था, विच सिली मिस्टेक हो गया और मैं रह गया. सेकंड अटेम्प्ट में मेरा हो गया. तो अब मेरा पॉइंट ये है कि इट वॉज एक तो रिलेटिव ग्रेडिंग है, तो जो टॉपर है ना उसके भी IIT के अंदर 65% ही आ रहे हैं, 70% ज़्यादा वो भी स्कोर नहीं कर पाता. तो मेरा पॉइंट ये है कि यार जब सिस्टम सबके लिए सेम है, एंड हाउ एल्स विल यू चूज, वो उस समय वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार कि बच्चे को आप IIT में 2 अटेम्प्ट है, आप 2 अटेम्प्ट लो, पहले से ही बोलो भाई एक और अटेम्प्ट है तेरे पास, टेंशन मत ले. क्योंकि यार ये तो फिर लाइफ ही ऐसे है ना यार, आपको हर जगह शुगर कोटेड थोड़ी मिलेगा यार. No, that's not what I'm saying. I'm saying this system that we take, like, ki this is the system and it should be the system. I'm totally against this system of thinking only. कि there should only be so 140 करोड़ लोग के लिए 10 इंस्टीट्यूट होना चाहिए अच्छा वाला. It's just like, why have we accepted this? कि you the reason you're not getting into an IIT is not because there is some fault in you or there is तुम में कुछ कमी है या कुछ है. It's because there are very few IITs. It's that simple. बट अभी तो 20 हो गई ना, अपने टाइम 7 थी यार, अभी तो 20 हो गई. 20 पर वो is slightly कहने को ही है better. यार. यार कहने को फिर भी वो एक उस लेवल के NIT से तो बेटर ही है यार. यार एक तो क्या है कि हमने ना IIT को एक डिफरेंट पेडेस्टल पे डाल दिया है. नहीं वो इसलिए डाला है क्योंकि उनके पास You're नंबर है ना जॉब में यार दिखाने को. right? You're so dismissive of the NIT or the whatever. It's that essentially same thinking of these are the people who made it this, or the It's- people who are in this, right? Which is a damage. And I agree, life will not sugarcoat it, etc. But I do think we, and especially look, competition is going to be there anywhere, especially in a country with 1.4 crore people. The numbers are always going to break the brain, right? But just creating a system that, I'm not even saying that you'll get a safety net or whatever, but that just tells kids that there's no need for you to think that your life has had a full stop put on it here because this one exam didn't work out. I think those systems are not in place. अरे मुझे अभी From तक all याद sides, है right? कि वो तो मुझे अभी भी ये सपने आते हैं रात को हाँ. कि मेरा IIT क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास IIT की डिग्री है. वो इतना बड़ा ट्रॉमा उस टाइम का. यार वो तो तुम अभी भी सोचो सपने ना, आते हैं. हम सबका, you know, even like I am 49, okay.
अभी क्लैरिफाइंग द अदर एंड गलती से कोई 41 मत समझ लेना फ्रेंड्स. इस एज में आके भी वन ऑफ द मेन नाइटमेयर्स दैट वेक्स यू अप इन द नाइट इज कि मैं एग्जाम के लिए लेट हो गया या मैं एग्जाम में I'm नहीं missing my exam. सो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ ट्रॉमा वी कैरी फ्रॉम दैट एज ऑफ 15 16 17 कि इतने 25 साल बाद भी हमारा जो नाइटमेयर है Yeah, it's just that. सेम अभी भी ये मेरा है. आते अभी भी सबने आईटीजे किया है. हाँ, और एक कि ये exam सपना रह गया. था कि मैं एग्जाम लिख रहा हूँ और मेरा हाथ फ्रीज हो गया कि पेन आगे नहीं बढ़ रही, बस मैं अटक गया वहीं पे. So imagine the pressure that you would have gone through at that time. It's that only which is coming out in your 100%. Yeah, nightmares 100%. after 20 years of doing this. कि अभी भी मतलब I still remember एक integration of tan theta कुछ ऐसे question था which I had seen 2 days before the exam जब मैं पंजाब का दे रहा था entrance exam. And my friend was solving it and I was like नहीं मेरा तो हो गया यार मैं नहीं कर रहा. And exactly the same question came in the exam and I was like अरे यार अगर मैं ये question it was an 8 mark or 10 mark question I would have been doing my mechanical engineering from Punjab Engineering College instead of Integration of tan theta में 8 मार्क्स कौन दे? अरे 8-10 अरे मैं कुछ ऐसे 0.8 था. नहीं दूं यार. So it's broadly that question. But in sorry. I wouldn't give you dirt for that. मेरा 846 रैंक आया था. मेरा आराम से 400 350 के आसपास होता रैंक. और मुझे आज तक याद है. आई रिमेंबर द कलर ऑफ दैट बुक, येलो एंड ब्लैक. इतनी मोटी किताब होती थी कि बट वो यू नो दैट प्रेशर, दैट ट्रॉमा ऑफ कि अरे ये नहीं हुआ, अरे इतने से रह गया. हम अभी तक वो एग्जाम सोच के कि यार अभी भी हम उठ रहे हैं. तो वो है. आई थिंक मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा इस जनरेशन के लिए बेटर इसलिए क्योंकि हमारे टाइम तो वर्टिकल्स ही 3 होते थे. इंजीनियरिंग में अभी भी है भाई. ये अभी सोशल मीडिया इतना कुछ आया, कुछ ये टियर 1 है सिर्फ. अच्छा. अगर समझना है तो कोटा जाके देख लो ना अभी भी. Like for a lot of people, they still feel like scrambling to the top of this one pyramid is the only way out, and I agree that that is the reality. और वहाँ पे इतना सुपर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है. मैं अब सोचता हूँ कितने suicides 40 होते की हैं उम्र यार. में कि क्या मैं अब जाके वापस आईटी कर सकता हूँ, तो मेरा बिग नो है. मैं नहीं कर सकता. मैं भी एक पर्सनल चीज से समझा रहा हूँ कि माई जर्नी हैज बीन दैट मैं पहले मैं ब्रिलियंस को बहुत वैल्यू देता था इंटरनली. मे बी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एवरीथिंग आई एम सेइंग. मुझे लगता था अगर तुम ब्रिलियंट हो तभी तुम्हारा मतलब कि वैल्यू है, और हर जॉब में तुमको एक्सट्रीम ब्रिलियंस का जरूरत है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ऐसा यू लाइक आई वैल्यूड ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंस पीपल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अ लॉट. बट विथ टाइम आई हैव कम टू रियलाइज दैट द मेन थिंग दैट मैटर्स इन लाइफ इज द एबिलिटी टू जस्ट डू योर जॉब ड्यूटीफुली, वॉट एवर इट इज. ओके, you don't, every day is not some crazy problem waiting to be solved. Okay, if you become an engineer, most likely you're not going to solve any life changing problem in your life. Okay, कोई भी नया आपको डिस्कवरी करने की जरूरत नहीं है. आपको कभी भी एक्चुअली में रियली कोई IQ यूज करने की जरूरत भी नहीं है. इफ यू कैन जस्ट गो सी कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये होता है, एंड डिलीजेंटली सुपरवाइज एंड डिलीजेंटली डू योर जॉब. लाइक डिलीजेंस, Like rigor and work ethic are extremely important skills. yeah, as opposed to and just like we flashing. said, yeah, like गूगल में इतने सारे इंजीनियर हैं, उसमें से 1% must be brilliant. Right? The rest of them don't need to be brilliant. The world doesn't need, the world is actually run by people who can just get up and do the thing that they do. अरे ट्रेन तभी चलेगी ना. एक गार्ड इसलिए खड़ा होगा, एक चलाएगा. इसलिए तो यार ऑफिस में भी डिपार्टमेंट होते हैं कि इतने टेक्नीशियन हायर करने हैं, बाकी लीडर्स चाहिए, बाकी मार्केटिंग चाहिए. Yeah, I think me and probably many people around me just overvalued कि ये बंदा बहुत brilliant है. Okay, and with time I've come to know that उसका actually में नहीं है. वैल्यू नहीं है. वो तो आईटी But I में भी wonder how much of that is also a factor of the fact that you live in a world where resources are so scarce, right? That when a person is brilliant, you feel like this is the one thing no one can take. This is an edge that he has that no one can take away from him, irrespective of that, and then you end up overvaluing it, right? Yeah. But that competitive exams उस समय तो that was the only way people could get out of poverty यार. एक मिडिल क्लास Still today, अभी for a जैसे lot of आज एक people. आईटीएन बनता है, एक फैमिली पॉवर्टी से बाहर निकलती है यार. वो बंदा पढ़ के यूएस जाता है, पूरी फैमिली वो होती है, उसके गांव में 4 लोग इंस्पायर होते हैं, हमें भी आईटी करनी. तो उसमें यार वही थे लोगों के पास यार आउटलेट्स. 100% agree. मतलब हाउ एल्स आप अगर पॉलिटिशियन के बेटे नहीं हो, बिजनेसमैन के बेटे नहीं हो, Which is why it's Jobs even more hanging. sad, like Biswas says, that there's only so many. Right? Because then at the end of the day, it's a zero-sum game. For you to win, someone else has to lose.
right? Which it shouldn't be. Education and getting out of the thing should not be a zero-sum game. हाँ Where the idea that because you got this, someone else was forcibly kept out of it and will not have a better life. पर लोगों ने TCS जाके भी फॉरेन चले गए. मेरे को ऐसा लगता है कि माइंडसेट टोटल कंट्री का माइंडसेट लाइक आई गिव अ डॉक्टर एग्जांपल ओके वन डॉक्टर वी कैन डायग्नोज रेयर डिजीज लाइक डॉक्टर हाउस टाइप का डॉक्टर है versus another doctor who is ready to go to the village and just give basic diagnosis to 2,000 people every day. Okay, that guy, in my eyes, he doesn't have to be brilliant, doesn't have to be anything, just more glued into society as is. Okay, and wanting to do Bluntly, more tangible effects. Right? Yes. Just tangible. More ground valuable effects. to society. yeah, more valuable to society. That's If a basically what general I'm saying. physician does his job well, super specialist के पास जाने वालों की जरूरत कम पड़ेगी. Yes, कम हो जाएगी. yes. हाँ. Like they say, done is better than perfect, right? Yeah. And हमारा जो ये मतलब कि that's the counter narrative I'm saying कि anybody who is watching this, parents, kids, whatever, nothing extraordinary needs to be done for anything extraordinary to happen. Okay, just do whatever you're doing, do it nicely. Everything is fine. तो वो दे देना हो वो ही जाता quote. है. अब हम पर्ची उठा ले. वैसा कुछ दे देना being ordinary हमने is काफी extraordinary. Would you study throughout the year or during the exam time only? इंजीनियरिंग मेरा एंड ऑफ ड्यूरिंग एग्जाम टाइम वाइल गिविंग एग्जाम सामने वाले से रीड करता था मैं चीटिंग करके. No, I am a machine whose driving fuel is deadline. So I am a pressure operated machine 100%. Wow. आईआईटी में हमारी होता था लास्ट डे है तो 8 बजे स्टार्ट करेंगे. सुबह 7 बजे जाना एग्जाम देने, 8 बजे रात के 8 बजे डिनर करके 6 बजे का काम ही होता था. पहले तो जाके जो भी लड़की है बैच की हमारी इलेक्ट्रिकल मानसी करके थी उसके नोट्स जाते थे. वो ऑलरेडी जेरोक्स शॉप के पास है क्या जाने वाले सब, तो मानसी के नोट्स मिलते थे सबको, वहाँ से लेके आते थे. फिर होता था अभी तो टाइम है खाना वाना खाए 8 बजे. फिर 9 बजे जो सबसे होशियार बच्चा होता था उसके रूम पे जाते थे कि साले तो हम 4 लोग हैं पढ़ाएगा तू वरना तेरे को भी हॉस्टल में वो कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे कि तू पढ़ाता नहीं है. फिर वो बेचारा पढ़ाता था 3-4 घंटे जो भी हुआ. तो मेरा तो इतना टारगेट रहता था कि मेरे को सत्ती मार के निकलना है, उससे ज़्यादा करना नहीं. और फिर पंची छक्की का पढ़ लेते सत्ती पंजी छगी क्या होता है प्लीज बता दो ऑडियंस के लिए. तो ऐसे होता है रिलेटिव ग्रेडिंग 4 से लेके 10 तक. 4 के नीचे आप फेल हो गए, बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो मेरे को सत्ती CGPA CGPA हाँ. हाँ. तो पूरा लास्ट डे ही होता था, मतलब 90% तो लोग लास्ट डे ही पढ़ते थे. तेरा कुछ नहीं पढ़ता था मैं और मैं एक्चुअली मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं था. तो मैं कुछ तो 4-5 चीज़ मेरे को एक जो क्लास का टॉपर था वो मेरे को बताया था कि ये लिख देना पास हो जाएगा. ओके जो भी क्वेश्चन है ये लिख देना क्योंकि सब्जेक्ट में है ही इतना. तो मैं जाता था क्वेश्चन पेपर देखता था जहाँ पे वो आंसर मेरे को लगता था कि फिट हो सकता है ठीक है वो फिट होता था ठीक है फिट करता था. 2-3 घंटे का एग्जाम होता था, आधे घंटे में मैं पेपर दे के बाहर और साला पूरा हॉल मुझे देख रहा है कि भाई ये कितना पढ़ाई करके आया है, क्या किया है, कैसे कर ये ऐसे लोगों के कारण बाकियों की बहुत फटती है कि हाँ. और मैं बाहर आके चाय पी रहा हूँ ठीक है बैठा हुआ हूँ और सब लोग एक एक करके आ रहे हैं ठीक है. और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं तो पास हो ही चुका हूँ ठीक है. और बाकी सब आ रहे कि ये सवाल का क्या, मैं बोला इसका पीछे भी सवाल. इस टाइप का हर एग्जाम में से हमारा एक क्लासमेट होता था वो ये काम करता था कि वो करके आता तो टाइम से बट ही वुड बी सुपर कॉन्फिडेंट. तो 50 मार्क्स का एग्जाम है ना तो अब सारे बैठे होते तो हमारा एक ग्रुप था 8-10 का जिसमें 3-4 बहुत पढ़ाकू थे, बाकी हम एवरेज थे. एंड ही वुड कम इन एंड बाकी कैसा हो यार एग्जाम, पांडे करके होता था. हाँ 45 तो आ ही जाएंगे यार. बाकियों की जान निकल जाती थी कि 50 में से तेरे 45 के नहीं 45 तो आने चाहिए यार, 45 तो कम से कम. बाकी को मेरे 25 का मेरा हुआ है 27 का हुआ है. एंड देयर वाज ऑलवेज दिस वन गाय जो होता था जो पढ़ाई करता था उसको पकड़ लेते थे लोग. वो आइडेंटिफाइड होता था कि इसके पास चले जाएंगे, इसको आता है, इसके पास उस दिन रात को बैठ के वो रो रहा है कि मुझे अपनी पढ़ाई करनी है. बट पीपल आर लाइक नहीं हमें पढ़ा के और वो पढ़ाता था CSR एक्टिविटी 2 घंटे पढ़ा के फिर भगाता था कि अब निकलो सालो. हाँ भाई एक बार मेरा बीटेक प्रोजेक्ट ओके यू हैव टू डू अ प्रोजेक्ट टू ग्रेजुएट एंड मेरा था कुछ तो था अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस. आई डिड बायोटेक ओके यू कैन अगेन आई से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस ठीक है. इसके ऊपर कुछ तो फालतू से मेरे को पेपर लिखना था. मैंने क्या किया कि मेरे को कुछ नहीं पढ़ाई, मैं कुछ नहीं किया लैब में, मैं
zero. I went to the lab 2 times. मेरा जो लैब में जो टीचर का जो असिस्टेंट मतलब प्रोफेसर का जो असिस्टेंट था, ही वॉज वेरी हेल्पफुल गाय. ही सेड यू नो मैं तेरे को पूरा मदद कर दूंगा, तो मैं डिक्टेट करता हूँ, तो लिख दे. लिख दे कि ये एक्सपेरिमेंट किया, और मैंने किया था, कुछ किया था, कुछ नहीं आ रहा था उससे. ऐसा लिख दे कि ये फेल हो गया, जो भी हो गया लिख दे. तो मैं लिख दिया. फिर मैं गया उसका प्रिंट आउट लेने के लिए. तो मेरा दोस्त मेरे को आइडिया दिया कि सुन, कलर प्रिंट आउट लेके जा, ठीक है, प्रोफेसर अप्रूव कर देगा तेरा कलर प्रिंट आउट, ठीक है. Hey, there are certain project hacks we have all used. Yeah. Color printout, laminated cover, spiral binding, certain things. I did all 3. Okay, I did all 3. I went to the professor. The professor hated me for very valid reasons. मैं कुछ नहीं पढ़ता था तो उसको बहुत गुस्सा था. वो डिपार्टमेंट में मतलब बिग प्रोफेसर. I gave him the file. He looks at the file and he doesn't read anything. Okay, he says Mycobacterium tuberculosis. I say yes sir. He's like, is tuberculosis a bacteria or a virus? And from what I have already said, you can already answer. It is, yes. And after, I thought must be bacteria, but since he's asking, virus. I'm sure this is a trick question. ओके, प्रोफेसर ने लिया, पूरा स्पाइरल बाउंड खोला, वो पूरा पेपर फाड़ा, ऐसे फेंका और बोला कि यू गेट आउट ऑफ द डिपार्टमेंट, यू नेवर शो मी योर फेस अगेन. फिर भी बेशरम की तरह, फिर भी मैं दूसरा कलर प्रिंट आउट लेके गया. आई एंटर्ड हिज ऑफिस अगेन. आई वाज लाइक, सर पास कर दो, पापा बहुत मारेगा. What year did you give your entrance नहीं, इस exam? बार नाम वो था ना, माइक्रो वायरस ट्यूबरकुलोसिस. What year did you give your exam? 2007 I entered, 2011 I graduated. 2007 you entered, you gave the JEE in 2007. Yeah. Anybody who gave the exam in 2007 didn't make it to IIT. This guy did. This is the guy who beat you. और यही बोल रहा था सिस्टम खराब है, सिस्टम में अनडिजर्विंग लोग आ रहे हैं. मैं सारा अपना शब्द वापस ले रहा हूँ अपने Wherever you are in this world, I hope you're happy knowing that this is the guy that beat you in 2007. I recall all my alphas. इसकी वजह से आज आप NIT हमीरपुर में हो. I'm sorry friend, सिस्टम सही है, मैं एक नंबर का भाई. Anyways, it's really happened. This should happen. बट ये IT में ये तो है कि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो लेते हो प्रॉपर प्रॉफ गवर्नड है, जो प्रॉफ के अंडर लिया है वही आपका ग्रेड देगा. तो कई का प्रॉफ खड़ूस होते हैं तो उनके लग जाते हैं. मेरा भी ऐसे ही था, बहुत चिल प्रॉफ था, मैं भी गया नहीं. फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं गया नहीं. हमारे 3 स्टेज होते हैं. तेरा बीटेक था, मेरा डुअल था, तो 3 होते हैं, 1 2 3, DDP 1, DDP 2, DDP 3. तो मैं फर्स्ट में कुछ गया नहीं. तो उसने मुझे बोला कि उसने पहले दिन हमें लाके बोला कि देखो भाई, तुम्हें प्रोजेक्ट करना है तो करना, मैं वो प्रॉफ नहीं हूँ जो तुम्हें परेशान करूँगा, तुम कुछ भी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सत्ती दे के पास कर दूंगा. मैं बोला भाई मिल गए भगवान. तो फर्स्ट में मैं गया ही नहीं पूरे सेमेस्टर में. वो भी रिवर्स साइकोलॉजी तो नहीं, वायरस है और बैक्टीरिया नहीं, हमने तो रिसर्च करी थी कि ये कूल प्रॉफ है. तो हमें तो क्लियर था कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो डिग्री लेके निकलना है बस. तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में मैं फर्स्ट पूरा सेमेस्टर में पहली बार गया उनके पास. तो उन्होंने बोला क्या है, कुछ आए नहीं, आप दिखे नहीं. बोला नहीं सर नहीं दिखा. एक काम करो, वो जो TA है उसकी रिपोर्ट ले लो, वो MTech वाला जो है मटका, और वो सबमिट कर देना. बोला थैंक यू सर. वो सबमिट की, मेरे को उसने 80 दे दी, गेट लॉस्ट, ठीक है. फिर सेकंड से आया, मैंने कुछ नहीं किया. मेरे दोस्त जा रहे थे, 2-3 बार वो जाते थे, उनको बोला उसको बोल, वो विपुल आ नहीं रहा, क्या है उसका सीन. और अब पूरा DDP निकल गया, अब मैं गया ही नहीं. और मेरे दोस्तों ने बोला कि अब तू जा रहा है उससे पूछने, तो वो तो ग्रेड वेड वो कर रहा है, तो अभी तू जाके रो और एक्टिंग करके मेरे को 1 महीना और दे दो, फेल मत करो. मैं दिसंबर में रुक जाता हूँ मुडाई के टाइम पे, और मैं 1 महीना मेहनत करके कुछ DDP की रिपोर्ट दे दूंगा सेकंड प्रोजेक्ट. तो मैं फुल थिएटर करता ही था. तो मैं मिरर में पूरी रोने वोने की एक्टिंग और एक माँ की स्टोरी और पूरा तैयार करके कि मम्मी पापा दोनों को एक साथ हार्ट अटैक आ गया दोनों को. तो ऐसा कुछ नहीं आ पाया, मेंटली डिस्टर्ब था, रो रहा हूँ फुल. तो मैं उसके कैबिन में घुसा, दोस्तों के सामने करके दिखाया. आनंद और आर्या बोल रहे बहुत सही एक्टिंग, ये वाली रखना. तो मैं फुल प्रिपेयर होके गया. अब उसका गेट खोला, ओह आ गए आप, आ जाओ. मैं बोला सर एक्चुअली वो मैं दे नहीं पाया सबमिट सर, मुझे 1 महीना और लगेगा सर, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो. तो बोला नथिंग डूइंग, यू नेवर कम टू द पेपर एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, जस्ट गेट लॉस्ट. आई ऑलरेडी सबमिटेड द ग्रेड्स, आई हैव गिवन यू 7 दिस टाइम, गेट लॉस्ट.
बाहर निकला मैं बोला, भाई ये क्या आदमी है यार। I want to thank you for inviting me. I no longer feel bad about not getting into IIT. I didn't learn shit. I didn't learn anything. उसके बाद में रोया Like लेकिन what खुशी के आंसू Nandan थे यार। Nilekani, the last good student अरे भाई। from IIT. फिर फाइनल ईयर, थर्ड ईयर में अब फिर फाइनल सबमिट देनी है, तो अब उसका हो गया कि सत्ती दे दी और अब नाटक में देना। फिर ना वही चल रहा है, फाइनल प्रोजेक्ट है, अब फिर से नहीं गया। और फिर से अब मैं दिया नहीं, और मैं कौन सी रिपोर्ट दे रहा हूँ फिर से, जो मैंने फर्स्ट स्टेज में दी थी मटके वाली, सेम दे रहा हूँ अभी भी। तो वो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे और वो देख रहा है, वो 3 स्लाइड में उसको चमक गया कि ये स्लाइड में पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। उसके अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट जागी, वो बीच प्रेजेंटेशन में एक एक्सटर्नल एग्जामिनर था और एक वो प्रॉफ था, वो बीच 3 स्लाइड का उठ के चले गया कि विपुल आई कांट सी दिस, प्लीज स्पेयर मी, मैं ये नहीं कर सकता है ना। और वो उठ के चले गए प्रेजेंटेशन से कि यार संजय गुप्ता कि ये नहीं हो पाएगा भाई मेरे से। फिर मैंने एक्सटर्नल को दिया, एक्सटर्नल भी देख रहा है, वो समझ गया कि ये। फिर उसने मुझे फिर से बोला कि यार चक्की देके भगा दिया कि तू आईटी में मत दिखना कभी साले। तो मैंने तो उनके पाँव पकड़ लिए कि सर, तो अगर आज मैं जो भी हूँ प्रॉफ कर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा नहीं तो उनको भी आईटी से निकाल दिया जाएगा। ये देखो दोस्तों, इस हम पॉडकास्ट के बाद आईआईटी एस्पिरेंट जरूर आधे हो जाएंगे। 100%. Quota in shambles after this podcast. तो मतलब यार इतने अच्छे प्रॉफ थे, मैं बच गया, वरना मैं अभी तक थर्ड ईयर में होता है ऑनेस्टली। देखो बच्चों, आज हमने सीखा कि कॉलेज नहीं, प्रोफेसर इंपॉर्टेंट होता है। oh no दोस्तों दिस रॉन्ग मैसेज इज गोइंग, आई फील लाइक तुम लोग पढ़ाई करो भाई। ये पॉडकास्ट जितनी वापस गई है आफ्टर द फर्स्ट सेट ऑफ भाई ऐसे नहीं कर सकते भाई। I think by the end of this podcast, both Vipul and Biswa are going to email their degrees back to IIT. आप रखो, हमने नहीं कमाई ये डिग्री, किसी 2011 के और 2 बच्चों को दे दो। You won't believe. Okay, मेरे को एक यंग एलुमनस अवार्ड होता है, ठीक है, तो उसमें किसी ने मेरे को नॉमिनेट कर दिया और मेरे को मिल गया, ठीक है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब वो ईमेल आया, मैंने रिप्लाई किया, सर आई डोंट वांट दिस अवार्ड, आई डोंट डिजर्व दिस अवार्ड, प्लीज गिव टू समबडी एल्स। I actually emailed back because I felt like, oh my god, ये स्कैम हो गया है आईआईटी के साथ। सही है। उसके बाद वो ईमेल मेरे को आया, मैंने एक्सेप्ट किया with full humility. The main thing I have learned about Indian education system is this, okay? You can do any stream, you can go to any college, but if you get your photo in newspaper once, even for unrelated reasons, you are best alumnus of the college. You could have done nothing. I've learned this about Indian education system now. Oh my god. तो मेरे गांव में तो मेरे को अगर आएगा ना, मेरे को यही शक होगा कि इनको फ्री शो करवाना है। वो तो होता ही है, लेकिन मेरा जब 12th में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट आया था ना 4203, तब भी पापा ने कहा, मैं राजस्थान पत्रिका में मेरी फोटो छपवा दी, खूब सारी बधाई, मेरे बेटे ने मचा दिया 4,000। ओह अच्छा, वो पिताजी नहीं छपवा दी? पिताजी का अपना अलग चल रहा है भाई, ये अलग ही पापा है उनका भाई। अलग चल रहा है। 4203 165 में तो मैं कोटा से ट्रेन से ढोल लेके आ गया यार, स्टेशन पे ढोल चल रहे हैं। जब बाप की छतरी की फैक्ट्री हो ना, तो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा तो बहुत बड़ा हाँ। सेफ्टी नेट था। मैं रिच मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से हूँ, मैं सेकंड सन हूँ, बड़ा भाई ऑलरेडी धंधे में है, तो मतलब मेरे तो काफी सॉर्टेड थे। When did you clear your entrance exam? I want to know. Person who didn't get into IIT the year before. Just I want to let you know. This is the guy. बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं भी तो किसी की वजह से नहीं घुस पाया। वो बदला मैंने फिर आगे लिया। बट ये मैं कहना चाहूँगा, आईटी के अंदर घुसना बहुत टफ है, मतलब टफेस्ट ही है, लेकिन आईटी के अंदर की जो पढ़ाई है ना, झूठ बोल रहा है, मैं 2 हार्ड डिस्क लेके गया था। नहीं बट अंदर की जो पढ़ाई है ना, वो रिलेटिवली काफी इजियर देन एंट्रेंस एग्जाम है। तूने ट्राई करा था आईआईटी? Which is the weirdest part? मैंने एक बुक खरीदी थी, उनको बुला के रेसनिक वाला और काम। हेलेनिक। वही तो। हाँ, रेसनिक मैंने एंड हेलेनिक, 5 पेज रेसनिक पढ़े, हेलेनिक। 5 पेज में से 4 बाउंसर गए, तो मैंने सोचा आई गेस IIT is not for me. Guys, you missed Irodov, it. हाँ। Vipul actually summarized the problem very well. He was like, IIT का पढ़ाई बहुत easy है, IIT का entrance tough है. That is precisely the problem कि ये एंट्रेंस से जाने का जरूरत नहीं, वो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। 2 अलग-अलग सिस्टम चल रहा है। मैं अगला पर्ची खोलूं? और किसी का है कुछ एग्जाम स्टोरीज? नहीं। Okay, Vipul, we have killed it. We have killed it, भाई। पहले सीरियस वाला थोड़ा कम कर देना। Okay.
engineering, was it your decision or family? What you guess, guys? The idea that it was a decision at all is adorable. That there is decision making involved as opposed to pure conditioning. मेरे तो पूरे गांव का डिसीजन था. Exactly. Let me put it this way. Chodna was the only decision I made. Okay, everything else happened in natural flow. हाँ बचपन में इंजीनियरिंग इतना सुना. Like I always have a question, like even for people watching is, do you remember, if you're like engineers, do you remember the first time in your lives you heard about engineering? I don't. I just feel like it's just always been there in the conversation. It was always there. मेरे को आईटी वर्ड ही नहीं पता था. पापा ने बोला होशियार बच्चे आईटी जाते हैं, कोटा में तैयारी होती है. मैं तो होशियार हूँ, चलो फिर बस. फिर वहाँ जाके फेल हो गए तो फुल ईगो पे आ गया कि यार अब तो करना ही करना, और बस वही था. नहीं तुम्हारे पास तो ये ना मतलब देयर वाज अ मारवाड़ी फैमिली देयर एनीवे. मारवाड़ी फैमिली भी है तो फिर यार वो तो और टफ है ना. अगर आप घर का धंधा ज्वाइन कर रहे हो तो आपका बाप ही आपका बॉस है यार. वो घर में भी बॉस है और ऑफिस में भी बॉस है. तब तो आप गए ना यार. वो तो बहुत मुश्किल है. वो तो और टफ है यार. क्योंकि गल्ले पे बैठ रहे हो और यहाँ भी पापा है वहाँ भी पापा, दोनों जगह बॉस है यार. वो कितना टफ है यार. एस्केप भी नहीं है. Falguni Pathak making good points. और जो दुकान पे क्या हो उसकी डांट घर पे पड़ रही है. मेरे से तो पापा ये करवाते थे. मैं आईटी की मेरी छुट्टियां होती थी समर्स की, तो मैं फर्स्ट 2 समर्स घर पे गया तो पापा का ये कि तो धंधा ही करेगा, तो मेरे को समर्स में दुकान पे लेके जा रहे हैं और छतरी का बिजनेस है, तो मेरे से ये काम करवाते थे यार. बालोतरा ये नाकोड़ा यहाँ से गाँव वाले आ रहे हैं धोती वोती में पहन के, छतरी खरीदनी है, मैं उनको पानी पिला रहा हूँ यार. चलो पानी पिलाओ. मैं ऐसे मटके से पानी पिला रहा हूँ, फिर वहाँ पे उनके लिए पान और चाय लेके आ रहा हूँ. मेरा यही काम था. Full Goyal and Guddu Pandit have the same college arc. It doesn't make sense. ये मारवाड़ी बाप की ट्रेनिंग होती है कि हम तुझसे सब काम करवाएंगे ताकि कल जब तू गल्ले पे बैठे तो कोई तेरे को बेवकूफ नहीं बना पाए कि साहब मैं बिल्टी बनाने गया था वहाँ पे रेलवे में ट्रांसपोर्ट देने और वो 2 घंटे में आया. तेरे को पता है वो 15 मिनट का काम है क्योंकि तू करके आया है. तू बैंक में चेक भर गया, तेरे को पता है 10 मिनट का काम है. Still a better system than IIT. अगली पर्ची उठा यार. Sorry guys, मैं और छतरी के विपुल कारखाने से बाहर मैं और निकले विपुल ये पॉडकास्ट को हाईजैक करके कांदाहार ले गए. ठीक है. हम नहीं वापस आ रहे भाई. क्यों वहां भी IIT खुल रहा है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म. What are your thoughts on the Kota style coaching classes? What do you think, friend? मुझे लगता है हर सिटी में कोटा बनना चाहिए. नहीं यार, कोटा वाला तो बहुत उस टेंडर एज में यार वो जो कंपटीशन है. हाँ. मतलब मैं अभी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि यार वो किसी को नहीं करना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए यार. मतलब मेरे में हिम्मत नहीं है कल को मैं मेरे बच्चे को कोटा भेजूं. मेरा बिग नो हो चुका है दिमाग में. नहीं, I have heard this story. Somebody's in fact I have to get back to him. They are doing this. They've started this where they are trying to get in touch with students on suicide prevention and all. Yeah. And he told me that in Kota the number of deaths that are reported in news are like 1/10 of what actually happens, because most of the time they just give money to the parents and they shut them up. So the number of suicides that happen, because a lot of these kids come from small homes where they've sold land, they've like taken loans. They're put in there in like 7th standard, 8th standard, something, right? And then this is the only thing you know. And again, like I said, the problem is not what happens if you get in. The problem is there is nothing that we have as a system to tell the kids that it's okay if they don't get in. That yes, it seems like a very huge this thing now, but hopefully. अब तुम 16 साल के बच्चे को अगर बोल रहे हो कि बेटा अब तो तेरे पे ही है, तू एडमिशन लेगा तभी होगा, एंड देन लाइक वन डे ही फेल्स हिज फिजिक्स एग्जाम इन अ कोटा क्लास एंड इज लाइक मेरे घर का सारा पैसा यहाँ लगा हुआ है मेरे पे और मैं किसी लायक नहीं हूँ. एंड इट्स मेरे घर पे तो बिल्कुल ऐसा प्रेशर नहीं था. मेरा तो ड्रॉप ईयर का भी उनका था भाई, जो करना है. हाँ नहीं, you are very lucky that very way. privileged and very cushioned. My main thing with No Kota pressure is from I just family. feel like I would be very suspicious of a place whose main technological innovation is anti-suicide fan. Right? That's not a sentence you want to hear, right? Like in the sense, sound by also like you cannot tell me your main innovation in your place is that you have a fan that doesn't let students hang themselves. The intent is still there for students to hang themselves, but it's just that you have now created a ceiling from which they cannot hang themselves. Wow. Yeah. Engineering marvel. It's an engineering marvel. Like really. चलें अगली पर्ची पे. नहीं मेरे को That joyous note. या नो मेरे को एक चीज
बहुत ही दूर इस थॉट से, मतलब कि इस टॉपिक से बोलना था कि all fully agree with everything. This system should not exist at all. We should not, well, people should not be having to go through this to this of a grind. But I found that the teachers in the coaching were more attentive towards me than in the actual college. I'm very sorry to say True. this. हाँ, that is true. That is true. Because obviously they're getting paid better. They're doing smaller batches. They're doing all of those things. Yeah. See, Like, say- your success matters to them. तू अच्छी रैंक लाएगा तो आईआईटी में होगा तो अगले साल उनकी मार्केट बढ़ेगी कि इनके यहाँ से 25 बच्चे निकले हैं, वो टारगेट के पे काम कर रहे हैं जो आईआईटी product, प्रोफेसर। बट उसमें भी वो होता है कि जैसे 8 बैचेस होते हैं तो टॉप टीचर्स वो शुरू के 4 को ही पढ़ाते हैं। कोचिंग वालों को पता होता है कि ये मेरे रैंक वाले बैचेस हैं हाँ। और ये मेरे बैंक वाले बैचेस हैं। हाँ यहाँ का पैसा आना है तो ये उसके लिए तो बट हाँ, बट द पॉइंट इज कि वहाँ पे दे आर मोर इन्वेस्टेड बिकॉज वन देयर रेम्यूनरेशन इज मच हायर, Yeah. दे आर मेकिंग इन करोड्स, देयर पर्सनल ब्रांड वैल्यूज ऑन हाँ देयर पर्सनल ब्रांड। अब आईआईटी के प्रोफेसर का अगर टारगेट उसको दिया जाए कि जी तुम्हारे यहाँ से 50 बच्चे इसरो में जाने चाहिए, हाँ. तो मैं एक्चुअली एक बट और आधे आधे तो प्रॉफ्स के खुद के स्टार्टअप चल रहे होते हैं फाइनेंस वाले खुद वहाँ कमा This रहे is true. Like for example of 12th standard coaching also. Like for example, even when we were like doing for our boards or whatever, like we had a physics professor in our junior college who would stop sentences halfway while teaching. Saying like तुम लोग वैसे भी ये ट्यूशन में करोगे. And it was true because he knew every single one of us was going to a class that evening where there would be more attentive professors, all of those things. Yeah, and I don't just mean in a physics सिखा दिया, math सिखा दिया. I actually feel those professors taught me about life more than the professors in college actually, because and I needed it at that point also because तुम्हारा confidence ना हिला हुआ होता है, तुम घर से बाहर रह रहे हो, etc. They actually शाम को बैठते थे for counseling and you could go and they would मतलब कि वही फिजिक्स ही सिखाते थे, वही मैथ्स ही सिखाते थे, बट द वे दे वुड टीच इट टू यू वुड बी कस्टमाइज्ड फॉर यू वेयर यू कुड अंडरस्टैंड एंड इवन पढ़ाते द टाइम ना, like I've noticed a lot of the times they would break into a bit of philosophy. Yeah. Ki they'll teach an organic chemistry whatever and they'll say ki something about, I don't remember the exact words now, etc. But it'll be something motivational, something to get you through the day. Okay, कि अभी ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा. प्रैक्टिस जो होता है वही मेन होता है और something like that, something more generic this thing. I don't know why I mean, obviously they're incentivized to do it or they deal with their good teachers or whatever. So yeah, that's what I found कि ये system है. आईटी के टीचर्स आर वेरी इंडिफरेंट टुवर्ड्स यू और वहाँ के टीचर्स कोचिंग वाले तो यार वो बहुत एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं. प्लस कई लोगों मेरे को बच्चे मेरे ऐसे फ्रेंड्स से बताया जिनको पैसों की प्रॉब्लम है, तो मैं ड्रॉप ईयर में रेजोनेंस में था तो वर्मा सर उनको पर्सनली पैसे भी दे देते थे कि यार ये ले, किसी के घर में प्रॉब्लम है. तो उस तरह मतलब दे यूज्ड टू मेक श्योर कि आई एम वेरी अप्रोचेबल. और मैंने वर्मा सर की क्लास अटेंड की है टॉप बैच में और 4th नंबर के बैच में, तो मैंने देखा उनका पढ़ाने का पेस भी डिफरेंट है कि वो A1 में थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं और जब वो A4 बैच में आ रहे तो वो उस हिसाब से पढ़ा रहे कि भी इनका थोड़ा सा कम है लेवल, तो वो आपके लेवल पे ऑपरेट करके पढ़ाते थे. तो वो मुझे बहुत सही लगता था यार कि मैं ये sorry I just had to say this कि yes it's fully dark and whatever but personal experience is personal experience. थे तो अच्छे भाई, क्या बोलने आप टीचर के बारे में. System is but there are I good had a people. great time. I also had a bad time but there is a silver lining. दैट इज अनदर पॉडकास्ट. The most rebellious thing you did in college. We don't- Dropped out. इससे बड़ा रेबल नहीं है कोई. Sat in Marine Drive for many days. Rebellious. क्या कुछ आपने? मेरा तो जीवन ही रिबेलियस है. तेरा जीवन ही रेबेलियस है. नहीं ऐसी चला नहीं. आपके टाइम पे कुछ? हमारे टाइम में स्ट्राइक हुई थी और स्ट्राइक के टाइम में फिर मैंने एक प्ले लिखा था जो हमने परफॉर्म किया था. Wasn't expecting No, was not expecting. Oh my God. Street theater doyen. Amit Tandon. सफेद कुर्ता लाल Founding दुपट्टा. member of IPTA. Never knew this. Please. वाह भैया, play? भैया का मंडल कमीशन चल रहा है. I forgotten about the play but it was like मैंने वो सारा वर्ड्स में लिखा था
कि everybody is like talking in a poetic way, but it was basically कि हमारे कूलर नहीं है, वाटर कूलर नहीं है, ढंग के हमारे ये नहीं है, वो नहीं है. So it was just that street play which was the 7-8 of us which we performed, where we made fun of what all was wrong, why we are on strike, and everybody is clapping. And I have to clap for Bhai. टंडन सर. When that sentence started, that was not True student of Mr. Jaspal Bhatti sitting here today with us. Too good, too good. too good. स्ट्रीट प्ले. फिर वो प्ले कितने बार परफॉर्म किया? नहीं, आपने? फिर क्या हुआ? एक ही बार वही बट कॉलेज उसकी वजह से फिर क्या हुआ? प्रॉप ने डिमांड्स मान ली या क्या हुआ? अरे नहीं यार, या वो आप पे टीयर गैस छोड़ी केमिस्ट्री लैब? अरे वो स्टूडेंट लीडर्स थे, वो गए, उन्होंने बाद में बोला कि नहीं हो गई, खत्म हो गई बात हमारी, एंड यू हैड टू जस्ट गो बैक. बंद करो ये नौटंकी. Nothing. किसने लिखा है प्ले उसको भेजो. Is the college mess food as bad as it is made to be shown in shows and movies? हमारा S3 का तो टॉप में आता था, तो हमारा खाना बहुत टेस्टी था. मतलब मेरे H4 H5, अच्छा हमारे वहाँ पे हॉस्टल के नाम ऐसे होते थे, हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 3, हॉस्टल 13 तक. तो हमारा मेस फूड तो काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी 4-5 बाकी हॉस्टल वाले खाने आते थे. What about you, mess food? Mess food you ever you Not in engineering college. In my postgraduate college, yeah, a guy used to somehow find like, I think he used to get whatever vegetables everyone else didn't want for cheap. And then he used to cook them with whatever spices nobody else wanted for cheap. And then I learned that there are many different ways a man can make Maggie if he truly wants to survive. You can make Maggie seem like a different dish every day if you truly want to know how to survive. But yeah, I lost the most weight I lost is in my postgraduate course. Like 3 months later, I came back and all my friends were like, "Wow, what diet are you on?" And I'm like, "Hey, hostel diet. hostel diet is the best." Food, it's like आप उसको ऐसा एविडेंस बेस्ड बोल नहीं सकते कि ये खराब है, कहाँ एग्जैक्टली खराब है बोल नहीं सकते, पर 2 दिन खाने के बाद तीसरे दिन खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था. ठीक है, तो उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कहाँ पे खराब है. फिर लोगों ने फिगर आउट किया था, आई कांट बिलीव वी डिड दिस फॉर सो लॉन्ग. हमको लंच बिल्कुल पसंद नहीं आता था, और डिनर खाना पड़ता था तो बाहर ही खा लेते थे. बट फिर लोगों ने हैक निकाला कि जो ब्रेकफास्ट है ना, उसमें कोई भी चीज़ ये लोग कुक नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ब्रेड आ रहा है, अंडा बॉयल हो रहा है और केला आ रहा है, तो इसको ये लोग खराब नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो लोग 7 बजे तक जागे रहते थे. ठीक है, ब्रेकफास्ट अनलिमिटेड, अंडा केला और ब्रेड पेल के सो जाते थे. 4 बजे उठते थे और सीधा डिनर करते कि ये लंच. ठीक है, पीपल स्टार्टेड लिविंग अकॉर्डिंग टू जस्ट टू ईट द ब्रेकफास्ट. हमने ये किया है. You ever had food so bad you evolve into a different species just to avoid it? Oh my God. हमारे आईटी बॉम्बे के सामने हिरनदानी में उसमें पिज्जा हट होता था. तो पिज्जा हट ने क्या स्टूडेंट्स को ट्रेड करने के लिए स्कीम निकाली कि आप एक बार प्लेट लेना, उस प्लेट में आप कितनी भी सैलेड भर दो, सैलेड बार से I know. कितनी भी भर दो, हाँ. वो एक बार में जो भी ले सकते हो आप उतना भर दो, और उसका उतना ही रुपया होगा, 70-80 जो भी था. आईटीएंस को स्कीम बता I लगी, do. तो लोग बैच में जाते थे. 8 लोग गए और लंच वंच नहीं किया. सैलेड बार इतनी हेल्दी चीज है, सैलेड बार जो वैसे कोई नहीं खाने वाला, और लोग पूरा साइंटिफिकली मतलब ज्योमेट्रिकली ऐसे पिरामिड बनाते थे, और इतना ऊपर ऊपर था. वो मैनेजर देख रहा पिज्जा हट का क्या चल रहा है, और सैलेड बार पेल के आते थे यार 80 रुपए में. उन्होंने ऑफर बंद कर दिया 1 साल बाद हाँ, कि भाई ये सस्टेनेबल ये सैलेड बार वाला मैंने अपना 2001 में, ये बहुत 2000 में आई थिंक हम MBA कर रहे थे, तब ये था प्रिया सिनेमा के पास पिज़्ज़ा हट होता था, और मैं और मेरा दोस्त जाते थे, और बाद में उन्होंने बोल का साइज छोटा देना शुरू कर दिया था हमें. लाइक The tendon effect. वी वेंट देयर सो मेनी टाइम्स कि हम जाते थे, वो मेन्यू लाता ही नहीं था, 2 बोल रख जाता था. ये हरामजादे यही करेंगे. पता नहीं, आई थिंक 99 का था उस टाइम. वाह. पर वो रख टाइम जा- में डाइट भी ज्यादा होती है यार. हाँ, एंड वो हम बड़ा बैलेंस कर रहे हैं कि मिडल वाली लेयर में ना वो डाल दो मेयोनीज या वो डाल दो जिससे ऊपर वाली लेयर चिपक जाए. ठीक है, ताकि वो हिले नहीं. वो प्रॉपर भाई पिज्जा हट के मैनेजर ने नहीं, उन्होंने लगा के सैलेड बार दे देंगे, तो यहाँ तक आए तो पिज्जा तो खा के ही जाएंगे. नाम तो पिज्जा हट है, सैलेड हट तो नहीं. लोग सैलेड में निपटा के निकल लोग सैलेड में निपटा के पिज्जा निकल जाते डोमिनोज से आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1+1 फ्री ऑफर है.
What was your first impression of your college when you joined? हाँ, day one. अरे I think more than anything, it just seemed so big. Like so many different departments, so many different this thing. It just seemed very big. Like I was just in awe of the bigness of it. कि यार बस ये कॉलेज है या गांव है, क्या है ये? मेरा तो मतलब फर्स्ट डे आई लाइक मेरे फादर आए थे मेरे साथ बठिंडा एंड ही जस्ट ड्रॉप्ड मी इन द आउटसाइड द क्लास एंड ही लेफ्ट एंड माय इम्प्रेशन वाज एक तो वही कि 200-250 एकड़ में था एंड 250 एकड़ इज ऑल्सो वेरी बिग एंड आई लुक्ड इनसाइड द क्लास एंड द sheer variety of people that I saw, I was like कहाँ आ गया यार मैं because in school everybody was from Delhi, everybody was from that locality, like there was some upar niche but largely the same. Here you have all kinds of people, so just day one was found people from Delhi, and I remember it was a Tuesday that I joined the class. Monday को शुरू हुआ था, some reason I went there on Tuesday I met everybody, सारे दिल्ली वाले इकट्ठे हुए और हम कॉलेज ख़त्म होते ही सीधा रेलवे स्टेशन गए और वापसी की टिकट करवाई फ्राइडे नाइट की ट्रेन लेके वापस जाना ही जाना है। Wow. फर्स्ट डे तो वो सही है, बिल्कुल ओवरवेलमिंग और छोटापन फील होता है यार। हाँ। जैसे मैं तो पहले तो बॉम्बे वाला इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, छोटे शहर से बॉम्बे आने में भी एक वो हो जाता था कि अरे यार यहाँ के लड़कों ने जीन्स पहन रखी है, वो भी 6 पॉकेट वाली, तो मैं उसी में हो जाता है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। और स्पाइक्स करा रखे हैं भाई, एक ने कलर करा रखे हैं, लड़की इंग्लिश बोल रही है, तो उसी में तो पहले तो वो आता था। बॉम्बे का ही बांद्रा स्टेशन लैंड करती है पहले तो बॉम्बे वाला वो होता था, फिर वो ऑटो ड्राइव होती थी बांद्रा ईस्ट से लेके IIT की वाया आर्य कॉलोनी, तो उसके अंदर आपको ग्रीन टी दिख रही है, LNT आया, फिर IIT के अंदर घुसती, वो जो पूरा सपना था आपका कल्मिनेट हो रहा है कि आज आप एंटर कर रहे हो, इतना बड़ा गेट देखते हो। वो पहले चौकीदार आपको लिखता है ID कार्ड, क्यों जा रहे हो, काउंसलिंग है, अच्छा ये है या रोल नंबर जो भी है वो है ना, फिर अंदर भेज रहा है और अंदर डिपार्टमेंट आता है तो 1 किलोमीटर सिर्फ वो है, मतलब पहली बार देख रहा हूँ रोड है और बिल्कुल ट्रीज और बाकी सब बच्चे दिख रहे हैं, पेरेंट्स दिख रहे हैं, कुछ सीनियर्स दिख रहे हैं, कुछ वो दिख रहे हैं, तो आपका माइंड इतना वो मतलब इट्स मोर अबाउट डर लगा रहता है कि यार ये मैं कहाँ आ गया, इतनी बड़ी जगह है, वैसी नहीं है जैसे मैं सोच रहा था। तो फर्स्ट डे तो आप उस मैग्नीट्यूड में ही दब जाते हो यार कि बॉम्बे का कॉम्प्लेक्स प्लस IIT बॉम्बे में इतनी बड़ी चीज़ देख के वो कॉम्प्लेक्स करो यार, मतलब पॉजिटिव तो कम था, वो जो आपने बोला इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा आता है। मतलब सिमिलर ही था, पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, नॉट अबाउट द फर्स्ट डे, बट व्हाट आई very much realized later is that the first week in college was the fastest rate at which I've made friends. I've never made so many friends so quickly, and when you're doing it, you're taking it so much for granted कि ये तो होते ही रहेगा ना guys. And then you realize, oh my God, मैं जिससे मिला, मैं गया एक साइकिल खरीदा, दूसरा मैं साइकिल खरीदा, friends. Exactly, हाँ, Okay, friend. वापस आए, मैं इसमें कोई पढ़ा था, friends. भाई इतना friends बन गए भाई, crazy हो गया. भाई मैं तो राजस्थान से जिस ट्रेन से आ रहा था उसमें 3 IIT थे, IIT बॉम्बे के, तो हमारा डिब्बा है S1 S3 फ्रेंड्स बन गए वहीं पे। ऐसे हाँ, वो सडनली यार you are out of home for the first time, You you're against just the looking world, for right? handles. Yeah. And You're they're all looking the for same, handles, right? हाँ. Everyone is looking for that. तो Yeah. सभी वो सेम वो तो वही ना, हमाम में सब नंगे वाला हिसाब है कि और अब IIT में ये है क्योंकि टफ एग्जाम है, तो वहाँ पे जो सिटी के लोग हैं ना वो 10% ही आते हैं, बाकी सब इंटीरियर्स है, गांव से, छोटे छोटे गांव से, वो पढ़ लिख के आए हुए, तो वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव इतना हाई होता है, तो हम वहाँ पे जो बॉम्बे का बंदा होता था ना, जो बॉम्बे का ही बंदा है जो IIT बॉम्बे में रह रहा है, वीकेंड पे घर जा रहा है, उससे हम कॉम्प्लेक्स में रहते थे, क्या डूड लग रहा है यार, ये इसने 3/4 पहन ली, क्या कॉन्फिडेंस है यार, ये ऐसे चले गया लेक्चर में 3/4 में आ गया, ब्लोन अवे हो गए। और उसके बिल्डिंग में उसके बिल्डिंग में लोग से मजाक उड़ा रहे, ये नर्ड. तो सिटी के बच्चों से कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन टचवुड 90% लोग छोटे गांव से ही होते हैं IIT के। मेरे केस में उल्टा था ना कि हम दिल्ली से थे, बाकी लोग पंजाब के थे, तो थोड़ा वो होता था ओ दिल्ली वाले, बिकॉज इट्स समहाउ बीइंग दिल्ली वाला इज लाइक ओ शाने, या कोशिश कर रहे शाने होने की। हमारे यहाँ पे ये भी था कि हमारे बैच में 1000 बच्चे होते थे, और हम लोग जो घुस गए तो फर्स्ट ईयर्स आर नॉट सपोज टू टॉक टू द सेकंड ईयर्स, थर्ड ईयर्स टू अवॉइड रैगिंग, द ग्रेटेस्ट सोल्यूशन इन द वर्ल्ड. सो फर्स्ट ईयर्स आर नॉट रैग्ड, instead when you go to second year you're ragged. Okay, it's just displacement of ragging has happened. Anyway, this is not like the issue. The thing is, कोई बंदे रहते थे जिनका कोई भाई या कोई वो सीनियर बैचेस में था, then they would bring in the culture slowly into this thing. Like for example, हमारे 2 रूम, मतलब each रूम 2 बंदे रहते थे और दोनों रूम का एक शेयर्ड टॉयलेट था. Okay,
तो the roomie is your roomie, but the other guy is your Tommy because you're a toilet mate. Okay, so ये शब्द कोई लेके आया कि तू तो मेरा टॉमी है. I'm like, क्या है? It's like, तू मेरा टॉमी है. मतलब मैं तेरा टॉमी क्यों पे? तो बोलता है मेरे को लगा कुत्ता बुला रहा है. ठीक है कि टॉमी है. तो बोला नहीं टॉयलेट है ना अपना सेम. मैं बोला भाई ये तू. And I was just like totally blown away कि भाई तूने ये word बना दिया भाई. Crazy is like a सब लोग बोलते हैं. Okay. What are some subjects they should include in engineering? Yeah, I have an opinion on this. I think no engineering college should be allowed to operate in isolation. You should add मतलब कि Yes. proper other colleges around it so that these like isolation ना हो जाए, वो similar thinking और echo chamber ना बन जाए. मेरे ख्याल से एक लेक्चर तो ये होना चाहिए जिसमें लड़कों को लड़कियों से बात करनी है Yes. कि ये सोशल Yes. जो ऑकवर्डनेस और सोशल कुछ है ही नहीं यार. In general, बात just करनी soft नहीं आती है skills. लड़कियों से. तो Soft एटलीस्ट skills. एक Communication, लेक्चर ये होना soft चाहिए कि आप skills, बस अब बातें presentation. करो आपस में. हाँ सीख लो कैसे इंसान बात बनाओ जानवरों से, सीधी सी बात है. यू नो स्पेशली इंजीनियरिंग विद यू नो द skewed gender ratio that we have, you know. I think just any subjects that can offer more projects that make people work in groups with soft skills together as opposed to just like coding projects or whatever, where you have to just learn to do teamwork and use soft skills to get shit done. That is something that's massively important. And I think that should now be agnostic across, like you said, all courses. Everybody should have that. Yeah. I think sport should like खेलना sport बोला मैंने. Sport. Is it sport or sport? It's whatever your IIT. It's No, whatever you want it to say. be. What is it? Sport. Sport. Mandatory होना चाहिए. मेरे को लगता है कि थोड़ा सा होना चाहिए. Okay, I have nothing else. Ragging, did it happen? What is your worst ragging that you faced? कुछ ragging नहीं. मेरा वर्स्ट ये था कि तो फर्स्ट ईयर में हम लोग आए थे तब ये था कि अगर किसी जूनियर ने कंप्लेन कर दिया कि सीनियर ने मेरे को रैगिंग लेने या इंट्रो लेने की कोशिश की है तो उसका सेमेस्टर ड्रॉप हो जाएगा. तो हमें दामाद जी की तरह रखा जाता था कि अरे फ्रेश आ रहे सीनियर भाग रहे कि भाई इनसे मुंह मत लगना. वैसे था वो 1-2 महीने चलता है. फिर उसके बाद में एक ये था कि सीनियर मेरे को ऊपर पकड़ के ले गया रूम में. उसकी रैगिंग ये थी कि नंगा हो. मैं बोला नंगा क्यों? मैं बोला नंगा मतलब क्या है, ऐसा मेरे पास क्या है जो आपके पास नहीं है? तो उन्होंने बोले नंगा हो. मैं बोला बट क्यों मतलब? तो बोले नहीं तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता क्या? मतलब आपको रिस्पेक्ट करने के और तरीके मेरे पास यार. मतलब मैं आपके लिए कैंटीन से कुछ ले आता हूँ, ऐसे काम करवा दो मेरे से. आपका पोहे से कीड़ा निकाल देता हूँ. तो उनका ये था कि नंगा मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता? मतलब सर मैं आपकी करता हूँ लेकिन मैं अपने आप की भी रिस्पेक्ट करता हूँ यार. तो मैं नंगा नहीं होऊंगा अब. तो बस फिर उसने बोला ओके सॉरी प्लीज़ को. उसको लगा कि अब मैं अगर उल्टा कर दूँ उसका कंप्लेंट. तो बस इतना ही था यार. आईटी में तो लोगों की फटी रहती थी हमारे टाइम. तो 2003 अपना I think I don't remember anything particularly distressing or anything. It was mostly fun only. I basically कुछ तो जोक टाइप का ही हो जाता था. सबको बिठा देते थे इंट्रो दो इसका ये वो कुछ नथिंग सीरियस. हमारे एक तो हिंदी में पूरी शुद्ध हिंदी में इंट्रो दो. तो उसमें शुद्ध हिंदी में शुद्ध मतलब शुद्ध मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी हिंदी में बोल. यांत्रिकी अभियांत्रिकी. एंड आई थिंक सबसे इट वाज अ वियर्ड रैगिंग. हम क्योंकि फर्स्ट ईयर में वहाँ रहते थे, सिटी में रहते थे. तो हमको बोला होता था कि हॉस्टल में जाना. हॉस्टल में बड़ी गंदी रैगिंग होती है क्योंकि 2nd, 3rd, 4th ईयर वाले हॉस्टल में थे, हम सिटी में रहते थे. तो अब मेरे को एक दिन पकड़ के ले गए ऐसी. एंड और अच्छे हट्टे कट्टे जाट हमारे यहाँ तो हर तरीके के आते थे वैरायटी. तो ले गए हॉस्टल. अब मैं डरा भी हूँ बट मुझे मेरे भाई ने बोला था रैगिंग में कोई कुछ ऐसा नहीं कहता, जो बोलते हैं वो करते जा. मैं ठीक है. मैं तो हम वहाँ गए हैं. तो पहले उसने इंट्रोडक्शन ली. फिर कहता तूने कभी किसी के साथ कुछ किया है? तो हाँ पंजाबी में. मैं कहा नहीं. कोई गर्लफ्रेंड है? मैं कहा नहीं. कहते तू तो दिल्ली से है. एक तो होता था दिल्ली से है तो गर्लफ्रेंड होगी. नहीं. अच्छा तुझे पता तो होगा ना कि क्या करते हैं, पिक्चर तो देखी होगी. मैं कहा हाँ देखी है. कहता अच्छा ये सराहना तेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तकिया तेरी गर्लफ्रेंड है, अब इसके साथ क्या करेगा, पिक्चर बन रही है. एंड मैं पता नहीं क्या मूड में था. आई स्टार्टेड यू नो. एंड एक आधी बार शायद उन्होंने बोला कि क्या ऐसे स्लो तेरे को पता नहीं. तो आई रियली गॉट इनटू इट और मैंने उसके सराहने का गिलाफ फाड़ दिया. क्या क्या क्या?
सिराने का तकिए का गिलाफ होता है ना, जो कवर होता है, वही फट गया उस चक्कर में. एंड देन दे, अरे यार रहने दे, ये केस आदमी को फ्रस्ट्रेटेड को उठा के ले. आप उसमें चले गए थे क्या अनिल कपूर? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा रूह भी निकाल रहे हो. बट I'm just checking. Just checking. लास्ट पर्ची, लेट्स जस्ट रैप अप. सॉरी, एक स्टोरी सुनाया तो शायद हाँ. काम आ जाए. 4 पॉडकास्ट है आज पूरे. आज तो मैं खुल चुका हूँ. अरे मैं बहुत मैं तो एक और कर सकता हूँ इसके बाद. जब हमारा रैगिंग खत्म होता है ना, तो उस दिन एक अफवाह फैलाते हैं कि वो दूसरा वाला हॉस्टल वाला जो है, वो लोग ये मतलब हमारे हॉस्टल के नाम पे बहुत गाली दिया है. तो अभी हम बोल के आगे की लड़ाई होगी, तो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे इस टाइम पे लड़ाई होगी और सबको चलना है. एंड देन से कि अगर तुम उधर और वहाँ पे जब तुम पहुँचोगे तो तुम पे डीसी लग सकती है, डिसिप्लिनरी कमेटी लग सकती है, विच मीन्स बेसिकली लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सेमेस्टर बैक एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. डिसिप्लिनरी कमेटी इज कॉल्ड डिस्को. डिस्को. तो हम डीसी बोलते थे वहाँ, तो कि लग सकती है, पर पूरे हॉस्टल को आना है, हॉस्टल का इज्जत बचाने के लिए आना है. ओके, क्योंकि वो लोग हमारे हॉस्टल के नाम पे कुछ बोल दिया. आदमी लोग हॉस्टल की इज्जत बचाने जा रहे हैं. ठीक है. तो The plot of the movie Josh. एंड देन एंड बहुत डराते थे कि वहाँ पे जाके डिसिप्लिनरी कमेटी हो जाएगा, ऐसा हुआ है पहले, ये हो. एंड देन सम ऑफ द फ्रेशर्स, सेकेंड ईयर्स होएवर, और धीरे धीरे कुछ लोग ऐसा, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, और बाकी जो रहते हैं हम लोग टाइप के, हम पूरा एकदम ही पीछे जा रहे होते हैं कि जैसे ही प्रोफेसर दिखे हम भाग लेंगे. ठीक है. और हम लड़ाई करने जाते हैं, और एंड व्हेन यू रीच देयर इट्स रिवील्ड कि वो दूसरा हॉस्टल कभी आ ही नहीं रहा था मानने के लिए, ना ही उन्होंने कुछ बोला है. दिस वाज अ टेस्ट टू सी योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर हॉस्टल. रिवील होता है, और उधर पूरा ऐसा टेम्पो शॉट होता है, और जो भी है उसके बाद आके बोलते हैं कि ये लोग जो आज आया था, ये लोग मेन लोग हैं, ठीक है, ये लोग को एज रिवॉर्ड मैं सेक्रेटरी, लिटरेरी सेक्रेटरी, ठीक है, ऐसे सब काम दिया जाएगा. ठीक है. और बाकी लोग जो नहीं आए To all Indian tests end with employment into the most bureaucratic position. बाकी सब लोग को बू. एंड हिलेरियसली द अदर हॉस्टल डज दिस like 1 hour later. Okay, जब तुम लोग आ जाते हो तो वो लोग का slot आता है. ठीक है. Every hostel, there are 6 hostels which come to the same spot in 6 hours each to test the loyalty. What a garbage system, bhai. Still better than IIT. Okay. Was your family happy with the college and the branch that you got? मेरी फैमिली ठीक थी. They were happy. आईटी का आदमी कोई भी ब्रांच हो यार, फैमिली का मेरा पूरा गांव हैप्पी था यार. सब Family was happy for a year, then they were unhappy for a bit, and then they were happy again. I have to ask you one thing. I get it. Like interior India, small town India, tier 2 में बहुत engineering का craze है. How the did you get into this shit, bro? I mean, I think, look, I don't think it has to do with interior, exterior so much as it's, and I mean, that outlier right here, but I think, like, from my parents' perspective, it was, we're not a business family. We have nothing to leave you. And there's this thing, like, especially in, like, Maharashtrians also, that become a software engineer, go abroad. That's the whole thing. Like, that whole get out mentality. And the only way that will happen is if you go to a good engineering college, go down the placement route, and then get out of there. So, from my parents always had it, like, since I was a kid, that the main thing is that, see, we are both professionals. Once we retire, there's no, like, and what also happened was that I grew up around a lot of business families. So they were very worried that I'll get into the thing of, and every day, like, they would almost remind me that they go, this guy that you're hanging out with or whatever, he is going to go sit at his dad's business, or he's going to, you have to make your own way. Huh? And he's going to go do this. You need to make your own way. And back then, at least, the only own way meant either engineering or medicine. Nothing else. Like, you could later on do finance or whatever, but the route to all those things was engineering. But आपके जान पहचान में relatives में कोई था क्या engineer? Arey, in fact, I have like heavily overachieving cousins who both went to IIT, then went to like Oxford, Cambridge. One of my uncles is a professor of economics at an Oxford school. It's a so solid like academic pressure from the family in that sense that, not that they're me, but that you should know that, you know, in our family there are cool people and you have to work hard.
if you want परंपरा anything, प्रतिष्ठा and अनुशासन that and that idea that देखो आर्ट्स में कुछ पैसा नहीं बनेगा तुम्हारा, like you were told all these things. कॉमर्स सिर्फ जिनका बिजनेस होता है वो लोग जाते हैं, I mean, they're आर्ट्स not में wrong. पैसा, They're not wrong. हाँ? Yeah. like हाँ, आर्ट्स में पैसा नहीं होता है तो इंजीनियरिंग करो basically is that's So how, what do you have to say? आर्ट्स में पैसा होता है? भाई मस्त अब अभी तो है. Okay. Amit ji, how much we get on pay for this one? किल गिफ्ट टाइम पर आएगा. Got it. देखो कॉमेडी फेस्टिवल हम भी 10,000 रुपए में ही करते हैं. Yeah. कुछ Cool. काम दूसरों का चैनल चलाने के लिए भी करने पड़ते हैं. Cool. Okay. Anything else? I think that is all. We've had good, interesting, serious and funny discussion on this. 100%. So thank you so much and hopefully कुछ लोग inspire होंगे इससे to do what? Remove कीड़ास from poha. Yeah. To do what? To think for yourself. Yeah, really. And just be assured that if you're just a normal human being, life will be fine. हाँ That's all. हाँ अगर तुम्हारे बच्चे ने 5 साल की उम्र में कीड़े निकाले हुए खाने में से तो वो टींडे और घिया बहुत शौक से IIT छोड़ो, विपुल गोयल के स्कूल में जाओ. Life is not a bed of roses. थैंक यू. Keep going. Just indulge this GoPro. I said I shan't. True IIT.